Today we'll start with the third part of infrastructure, and we'll start with one topic named health. And as you know, as I told, health is very, very important. When we talk about health, it is the ability to work, okay? And your ability to work depends on health, okay? And when we talk about health, health does not mean physical health, it means physical, mental, spiritual, emotional, everything is included in that. That means it should be holistic health, okay? It is not the just the absence of disease, but also the ability to realize one's potential. Okay? So health is the yardstick of one's well-being, whether you are sorry, whether you are well or not. So well-being is something which is not just absence of disease, but mentally you are sound, physically you are sound, emotionally you are sound or not. Okay. So health is very, very important component of social infrastructure. Charles. So scholars they say that people's health is a is an indicator whether the country is progressing or not. Okay. If a very high infant mortality rate is there, maternal mortality rate is very, very high, that indicates that there is something wrong with the country, where there is something wrong with the social infrastructure. And मैंने बताया था शायद infant mortality एक तो होता है infant mortality और दूसरी चीज़ होती है child mortality. Okay, so the difference when we say infant mortality, that means number of uh, uh, infants die before attaining the age of 1. ठीक है ना. That means maybe at the time of birth or before attaining the age of 1. So number of children dying at per 1000 at the age of during the time of birth or before attaining 1 years of age. ठीक है. और ठीक है ना, एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी. चाइल्ड मोर्टालिटी मीन चिल्ड्रन डाइंग बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 5. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. और मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या हो गया? द डेथ ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वो भी हाई नहीं होना चाहिए सर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि 60 के ऊपर. न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छे होना चाहिए. दिस आर द गॉट इट. एंड इंडिकेटर्स alongside incidence of communicable and non communicable diseases, ये आपकी बहुत कम हो जाना चाहिए जब भी आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा माना जाएगा. ठीक है. Now, development of health infrastructure ensures a country about healthy manpower for production. If suppose the manpower is not healthy, what will happen? It would surely affect the production of goods and services. It would affect the productivity. Okay. और इसमें सारी चीज़ें क्या आ गई? हॉस्पिटल्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स. ओके. हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर? ना नंबर ऑफ हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, number of hospitals giving quality services, that is also important. Whether the health services have are reaching the poorest of the poor, that is also very, very important. And a well developed pharmaceutical industry should be there. Got it? I hope you are able to understand. ठीक है ना. सो स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. आज देखो आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है इंडिया के अंदर. गवर्नमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इशूज. यहाँ कहा गया द गवर्नमेंट हैज़ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ओके, नॉट राइट, सॉरी, ड्यूटी. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इशूज सच एज मेडिकल एजुकेशन, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड में जो मिलावट होती है उसको भी रेगुलेट करना ही. तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ठीक है ना, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसी, लुनेसिस, ये सारी चीज़, मेंटल हॉस्पिटल्स को भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. ठीक है ना. Health and what we say family welfare collect information and render financial and technical assistance to state governments, union territories and other bodies for implementation of important health programs in the country. So the government implements many health related programs, isn't it, at the grassroots level. Unfortunately, what happens, the medical facilities or such type of facilities never reach to the poorest of the poor. Okay, and they are the ones who suffer very badly. गॉट इट. सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, हर चीज़ रिलेटेड है ये. ठीक है. आप तो हेल्थ सेक्टर इज़ इन डॉलड्रम्स. अगर हम एक वर्ड कहें तो डॉलड्रम्स का मतलब बहुत ही हालत ख़राब है. हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज़ परफेक्ट.
because it has become the money churning machine and the poorest of the poor they suffer. गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटी नहीं है और जैसा कि गरीबों को मदद मिल सके कुछ, ठीक है ना। कहने के लिए बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। ड्रग्स का जो होता है, जो कंट्रोल होता है, जैसे अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे डू द व्हाट वी से दे हैव द that sort of crookedness is there. Certain medicines are there which are very say वो एक अगर मान लीजिए कोई एक पैरासीटामोल टेप स्ट्रिप वो 10 गोलियों की मान लीजिए कितने की पड़ती है, 2 रुपये की पड़ती है, बट दे वुड सेल इट फॉर 20, 30, 40 रुपीज़ because of the branding. Okay, so generic medicines are not properly available to the poor people, isn't it? And they are affected. So regulation कहने को तो है, but regulation is not in a proper manner because lot of loopholes are there in the system. अब देखो यहाँ पे एट द विलेज लेवल समझते हम, a variety of hospitals known as primary health centers have been set. देखो have been set, वहाँ का कामकाज कैसा है वो इम्पोर्टेंट है. There are large number of hospitals run by voluntary agencies and the private sector equipped with professional and paramedical professional trained in medical, pharmacy and nursing colleges. कहने को तो क्या है कि लॉजिस्ट क्या कहना चाहिए, सिस्टम इज परफेक्ट बट दैट परफेक्ट सिस्टम इज ओनली ऑन पेपर्स. ओके, नंबर ऑफ यू कैन से हाँ एनजीओज काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, वॉलंटरी एजेंसीज काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर जिनके पास अच्छे प्रोफेशनल सब काम कर, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ट्रेन इन मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस भी खुल गए हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं, बट उनकी हालतें बहुत ख़राब हैं. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो हैं, बट अगर मान लीजिए कोई बंदे को कोई खतरनाक बीमारी आ गई, then surely that particular person would run to the big hospitals in the cities, and there they are without money, they are without any financial assistance. Government never give, या तो देती नहीं है या फिर उन तक पहुंच नहीं पाता है, isn't it? So since independence there has been a significant expansion in the physical provision of health services. 1951 से तो आप कहने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपांशन तो हुआ ही, नो डाउट, बट जिस हद तक होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है. दोज हु आर एबल टू अफोर्ड वो बेचारे कर सकते हैं, बट द पुअर पीपल, दोज हु आर अफेक्टेड मोस्ट एंड दोज हु आर विदाउट एनी रिसोर्सेज, दे सफर. जैसे कि आज कोई से भी हॉस्पिटल चलिए, सरकारी हॉस्पिटल में, इफ़ यू गो टू द सिविल हॉस्पिटल, सी द कंडीशंस ओवर देयर, isn't it? It is all government monitored, but unfortunately see the health and hygiene over there, how filthy these hospitals are, the drugs are not available, isn't it? And the people are told that you take it from outside, वहाँ chemist से लेके आइए, यहाँ नहीं मिलेगी. So lot of loopholes are there in the private sector. boom कर रहा है, blossoming. In recent time, private health infrastructure has grown largely. Private sector health infrastructure is explained below. About 70% of the hospital running in India belong to private sector, but they love to milk, what we say, milk तो नहीं कहेंगे, they love to exploit the poor people. The private sector for the poorest of the poor is very, very costly. Nearly 60% of the dispensaries are run by the same private sector. Dispensaries वगैरह होती हैं जो वो सारी की सारी प्राइवेट ओन्ड है, और प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे तो ऑफकोर्स सुविधाएं सब मिलेंगी, 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी आपको, नर्सिंग होम जो बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए, isn't it? They have state of the art what we say technology also when it comes to different types of diseases. They give solutions, doesn't it? But unfortunately you cannot, everybody cannot go there. So private sector has also been contributing significantly in medical education. यहाँ लिखा हुआ है मेडिकल एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हाउ मच मनी यू हैव टू पे. 1 करोड़ से एक खोखा जिसको कहते हैं, उससे कम में आपकी एजुकेशन नहीं होगी, आपको लोन लेना पड़ेगा. आप डॉक्टर बन भी गए तो भी आपका ये रहेगा कि भाई मैं थोड़ा बहुत जो है अपना भी कमाऊँ कि नहीं, मुझे भी लोन चुकाना है. सो मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया. ठीक है ना, तो लिखा हुआ है ट्रेनिंग भी अच्छी है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड डायग्नोस्टिक्स, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल, सब लिखा हुआ है, सब कुछ हो रहा है, बट कॉस्टली बहुत है ये सारी चीज़ें.
मेडिकल की एजुकेशन कॉस्टली है, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक सेंटर्स आप देख लीजिए, डायग्नोस्टिक मतलब आपको डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कह दिया सर मेरा सर दुखता है, आपने कह कि आपका सर दुखता रहता तो एक काम का MRI करवा लीजिए, ये सिटी स्कैन करवा लीजिए, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। आप देखिए कितना आपका पैसा लग जाएगा, एक अल्ट्रासाउंड, एक सिटी स्कैन, एक MRI 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार से कम नहीं होता है। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है ना। तो अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें इंडिया के अंदर तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब बस वो डायग्नोस्टिक, कोई भाई रोकथाम कैसे कर सकते हो आप किसी बीमारी की, सफाई वगैरह रखना है इसको, ठीक है ना। एंड व्हाट वी से प्रिवेलिंग, क्या प्रिवेलिंग हेल्थ, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना की अगर आप अवेयरनेस की बात करेंगे तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू होता है, दैट व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिजीज एंड हाउ टू कंट्रोल दैम, ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटरी, जनरली गाँव में होता है कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो औरतों को अच्छा खाना खाना चाहिए, इसका प्रॉपर फूड सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर, इसकी सारी जानकारी और ये सब अवेलेबल कौन करवाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गाँवों में, कस्बों में, ठीक है, उसकी जवाबदारी। सिमिलरली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज एंड इंजरी, ये भी आता है कि सरकार कई बार ये कैंप लगाती है ना कि जितने भी वो जो डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ना आप डेडली डिजीज़ के लिए कैंप लगवाती है, शहरों में भी लगवाती है और जो है गाँवों में भी लगवाती है, जैसे पोलियो हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, है ना। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है सारा, है ना। ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफ, जिसको दाई कहते थे पहले ज़माने, मिडवाइफ, है ना, वो भी सरकार मुहैया कराती है, जिसको मिडवाइफ बोलते हैं ना, जो प्रेगनेंसी के टाइम जब जब बच्चा होता है उसमें मदद करती है। हु प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है दाई को कि बच्चा वगैरह कैसे संभालना है, उस वक्त मदर की हेल्थ कैसी होना चाहिए, बच्चे की हेल्थ कैसी होना चाहिए, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। कई, क्योंकि इंडिया ही वो कंट्री है जहाँ पर मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। कभी कभी कोई चूक हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है, तो सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी जाती हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये सारी जगह पे, ठीक है। अब सेकेंडरी की बात करें, व्हेन कंडीशन ऑफ अ पेशेंट इज नॉट मैनेज बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दे आर रेफर टू सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। हेल्थ केयर इंस्टेड हैविंग बेटर फैसिलिटी, इससे बड़ा जो है, मान लें कोई बंदे की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर में भेजा जाता है, जहाँ पर उसकी सर्जरी होती है, पूरा उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक्सरे, ECG, है ना, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं। फंक्शन बोथ एज प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, दे फंक्शन बोथ एज प्राइमरी, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है ना, प्राइमरी में जाओगे तो भी चलेगा, सेकेंडरी में डायरेक्टली आ गया तो प्राइमरी वाला भी काम होगा यहाँ पे कि डायग्नोस किया जाएगा प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम है, और फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगे। ये कहाँ होगा, ये होगा सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर में, गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है ना, बिकॉज देयर ओनली द फ्री मेडिकल फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। हाँ, अगर आपने सोच लिया प्राइवेट में जाओगे तो फिर पैसा लगेगा, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर systems are operated by government as well as private people. They are mostly located in district and headquarters in big town, ठीक है, रतलाम है, रतलाम तो कोई गांव, आसपास के गांव वाले कहाँ आएंगे, रतलाम के जिला हॉस्पिटल में आएंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर यहाँ नहीं संभलेगा तो उनको कहीं पे भेजा जाएगा। और ठीक है, इन टर्शरी सेक्टर देर आर द हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस्ड लेवल इक्विपमेंट एंड मेडिकल, जैसे अगर आपको दिल्ली में अपोलो है ना, there are the hospitals which have advanced level equipment and medicines undertake all the complicated health problem, किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा डेडली जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट में भी संभलेगा नहीं, सेकेंडरी में तो टर्शरी में भेजा जाएगा। तो वो बीमारियां विच कैनॉट बी मैनेज बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। got it? So this sector also include many premier institutes which not only impart quality medical education and conduct research but also provide a specialized healthcare system, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ना सिर्फ आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं प्रीमियर जो हॉस्पिटल के रूप में भी काम करते हैं और रिसर्च सेंटर्स के रूप में भी काम करते हैं,
है ना, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स में भर्ती करा, किसी को आपने सुना होगा, तो ये सरकारी ओन्ड है, गॉट इट और नॉट। यहाँ रिसर्च भी चलती है और जो है सारा का सारा एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर पौंडीचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक कोलकाता। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कभी पूछ लिया कि कौन से एम्स जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में, यू शुड बी एबल टू आंसर प्रॉपरली, ठीक है। गॉट इट। जैसे रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुला है तो ये सेकेंडरी लेवल में आएगा, ठीक है, ये प्राइमरी में भी नहीं आएगा, सेकेंडरी में आएगा। फिर यहाँ से कोई बात नहीं समझेगी तो फर्दर आपको भेजा जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो गई, जैसे अभी कोरोना के केस आ रहा है तो वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो कहीं और भेज रहे हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल ASM, इट इंक्लूड 6 सिस्टम। अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक तो होता जो हम अभी बात कर रहे थे जितनी थी एलोपैथी था, अंग्रेजी दवाएं बोलते हैं इनको, और इंग्लिश मेडिकल सिस्टम जिसको कहते हैं एलोपैथी। लोगों का दावा है कि एलोपैथी की दवाएं अगर आप लोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स आर लॉट, है ना। एंटीबायोटिक्स जो है बहुत खाते हैं लोग तो उससे भी नुकसान होता है, जरा सा बुखार आ गया तो पैरासीटामोल हम खा लेते तो उससे भी नुकसान होता है। तो मैनी पीपल दे आर टर्निंग टुवर्ड्स अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, जिसमें कि एक सबसे बढ़िया है आयुर्वेदा, ठीक है ना, योगा, यूनानी भी एक सिस्टम होता है, यूनानी सिस्टम, सिद्धा, नेचुरोपैथी, मूविंग टुवर्ड्स नेचर, एंड होम्योपैथी, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी खास बात यह है कि दे ट्रीट अ पर्सन होलिस्टिकली। आपके ये मेन डिफरेंस है एलोपैथी। अगर एलोपैथी की बात करें तो दे एक्चुअली और दे डायग्नोस यू अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। आपका सर दुखा तो उसमें डॉक्टर ने सर के दर्द की गोली दे दी और ठीक हो जाएगा। बट इफ़ यू गो टू वेरी एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर, है, वो आपको एक कैटेगरी बना, उनके आयुर्वेद के हिसाब से कैटेगरी होते थे, यू बिलोंग, योर पर्सनैलिटी बिलोंग टू दिस कैटेगरी। वात, पित्त और कफ, 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो वो बोलेगा, आपको डिटेक्ट करेगा और आपको बोलेगा कि भाई आप जो है वात वाले हो, पित्त वाले या कफ वाले, आपको ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, आपको ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, लाइक दैट, एंड देन योर प्रॉब्लम वुड बी रिजॉल्व। योगा तो आपको मालूम है, यूनानी सिस्टम भी होता है ना। और नेचुरोपैथी, ट्रीटमेंट ओनली विथ नेचुरल थिंग्स, ठीक है ना, मतलब वो जो नेचर की चीज़ें हैं, फल खाना, नेचर, तो विदाउट एनी व्हाट वी से एलोपैथी मेडिसिन, जो कि अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं उससे आपको ट्रीट करना, ठीक है। होम्योपैथी भी होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, सम पीपल दे प्रेफर इट। हाँ, ये फ़र्क होता है कि एलोपैथी जो होता है, नाजिम बताया आपको, difference in medical healthcare between urban and rural can be understood from the point given below. Only 1/5 of total hospitals are located in rural areas, ठीक है, and people in the rural area do not have sufficient medical facilities, है ना। अब आप देखो, ये मैंने बताया था, this led to difference in the health status of people. Out of 7 lakh people, है ना, out of 7 lakh beds, roughly 11% are available in rural areas. There are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people in rural areas, while urban areas have 3.6 hospitals. This is pitiable condition, okay, कि 1 लाख लोग अगर रूरल एरियाज में हैं तो एक हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ पर, और शहर में कम से कम 3 हॉस्पिटल हैं 1 लाख लोगों पर, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अगर की उनकी बात की जाए तो वहाँ पे जो बेसिक लेवल की फैसिलिटी, ब्लड टेस्टिंग, वो लैब्स नहीं है, एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर एक्सरे होता भी है तो मशीन ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, वो आपको शहर भेजते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। और एक और जो अर्बन रूरल डिवाइड है वो इसको समझ लीजिए आप कि पुअरेस्ट 20% ऑफ इंडिया लिविंग इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया स्पेंड 12% ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ केयर, वाइल द रिच स्पेंड ओनली 2%। रिच लोग सिर्फ 2% अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं काहे पे, जो बीमारियों पे। इसका रीज़न उनका खान पान, उनका सेहतमंद रहना, बिकॉज दे आर ईट न्यूट्रिशियस फूड, दे गॉट इट, दे नेवर सफ़र from any particular disease due to lack of potable water, waterborne disease उनको नहीं होती है,
न्यूट्रिशियस फूड वो खाते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं खा पाते हैं, ठीक है ना, उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ हो, हाँ अमीरों में लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं, डायबिटीज़ हो जाएगी, ये शायद गरीबों में कम होती है। Percentage of people who have no access to proper care has risen from 15 in 1986 to 24 in 2003। अब बात करते हैं वुमेन्स एजुकेशन की, यहाँ की भी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर बात करें, और अभी आज भी हमारे वहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, पर उस टाइप की जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं इंडिया के अंदर। आज भी देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो, दैट नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, पहले कितना था 2001 में 927, ना वो गिर के 914 इन 2001, क्योंकि लोग आज भी प्रेफर करते हैं मेल चाइल्ड, ठीक है। और फीमेल फिटिसाइड इन द कंट्री इज स्टिल देयर, मतलब वो भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं कि कोख में बच्चा है, फीटस है, उसी को मार देना, ठीक है। और 3 लाख गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 15 आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बोर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस, ओके। और एक चाइल्ड मैरिज भी एक नॉर्म है इंडिया के अंदर, लड़कियां जो जब 13-14 साल की उम्र में ब्याही जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं उनको, और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है। और जो बीमारियां होती हैं, सबसे प्रमुख बीमारी जो मैरिड वुमेन में होती हैं वो दैट इज़ लैक ऑफ आयरन, अनीमिया, ठीक है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, गॉट इट। अबॉर्शन हो जाता है उनका, कभी कभी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं अगर, तो वो जो अबॉर्शन उनको करवाना पड़ता, डॉक्टर यही कहता है कि भाई या तो माँ की जान बचा लो या बच्चे की, तो अबॉर्शन करवाना पड़ता। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और कभी कभी क्या होता है कि अबॉर्शन के टाइम भी डेथ हो जाती है मदर की, ठीक है। सो हेल्थ अ वाइटल पब्लिक गुड एंड अ बेसिक ह्यूमन राइट, ऑल, ठीक है ना, एक ये बेसिक ह्यूमन राइट है हेल्दी रहना। ऑल सिटीजन कैन गेट बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज, मतलब ये है कि एक कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का हर चीज़ में, सेंट्रलाइज्ड। तो अगर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो शायद सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस अगेंस्ट डिजीजेज डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, थ्रू एजुकेशन, through efficient health infrastructure. So it is necessary to create an awareness on health and provide efficient system. The role of telecom and IT in this regard is very, very important. The ultimate goal should be to help people move towards a better quality of life. तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी आएगी इकोनॉमिक वेलबींग से, और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी आपकी सोशल वेलबींग से, दोनों ही ज़रूरी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया।